ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্গত পড়ে চিত্তরগড় ফোর্ট, যেটা ভারতবর্ষের লার্জেস্ট ফোর্টের মধ্যেও পড়ে। এই ফোর্টের ক্যাপিটাল ছিল মেওয়াড়, আর আজকের দিনে এটি রয়েছে চিত্তরগড় সিটিতে। এই ফোর্টের ইতিহাসও ভীষণইভাবে রোমাঞ্চকর, কারণ আলাউদ্দিন খিলজি আর রানী পদ্মিনীর গল্পটা আমরা সকলেই জানি। রাজাদের রাজত্ব পাল্টে যায় আর তার গল্প, তার ইতিহাসও পাল্টে যায়। আগে চলুন তাহলে চিত্তরগড় ফোর্টের একটা ট্যুর করাই। হ্যালো ভিউয়ার্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিতাস ডায়েরি। আজকে রাজস্থান ট্রিপের আমাদের তৃতীয় দিন। আমরা এখন যাচ্ছি পুষ্কর থেকে চিত্তরগড়। এখন আমরা রওনা দিয়ে দিলাম চিত্তরগড়ের দিকে। চিত্তরগড় পুষ্কর থেকে হচ্ছে 210 কিলোমিটার, মোটামুটি 3-3.5 ঘন্টা তো লাগবেই। তো রাস্তা ভালো থাকলে হয়তো আরেকটু আগেই পৌঁছে যাব। মজার ব্যাপার হচ্ছে পুষ্কর থেকে চিত্তরগড় যাওয়ার সময় কিছুটা পথ কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা, আবার এই পাহাড়টা ডিঙিয়ে আমরা আবার প্লেন রাস্তায় নেমে যাব। বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস যার জন্য লাগছে, কখনো পাহাড় কখনো রাস্তা, ভীষণ ভালো লাগছে। সারা রাস্তা কিন্তু প্রচুর টোল আছে এখানে। তো এই আর একটা পড়লো টোল গেট। এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে পেয়ারা কিনছি, এগুলো ভেতরটা রেড, তো 150 টাকায় 1 কেজি বলছে। আমরা এখন প্রায় চিত্তরগড় সিটি পৌঁছে গেছি। আর এটা হচ্ছে পান্নাধার সেতু। বাঁদিকে গেলে কোটা শহরটা পড়বে, আর ডান দিকে গেলে আমরা ফোর্টের দিকে পৌঁছে যাব। আর এই যে দেখা যাচ্ছে দেখুন, পুরো লম্বা ফোর্টটা, 12 কিলোমিটার রেডিয়াস। এই ফোর্টটি এতটাই বড়, এটা পুরো দেখার জন্য কিন্তু একটা পুরো দিন লেগে যাবে। আমরা ফোর্টের ভেতর কিন্তু এন্ট্রি নিয়ে নিয়েছি। এরকম অনেকগুলো গেট আছে, এই গেটগুলো পার করে কিন্তু টিকিট কাউন্টার। চিত্তরগড় ফোর্টে ঢোকার জন্য টিকিট কাউন্টার 40 টাকা করে পার হেড, আর গাড়ি পার্কিং লাগলো 40 টাকা। তো মেয়েদের লাইনটা ছোট বলে আমি এখানেই দাঁড়ালাম। পৌঁছে গেছি চিত্তরগড় ফোর্টে, একদম ভেতরটায়। তো আমরা একজন গাইডকে নিয়েছি, তো উনি 800 টাকা বলছেন, তো সেটাতেই রাজি হলাম। এখন দেখি উনি কিভাবে দেখান। এই ফোর্টটার মধ্যেই কিন্তু 14টা পয়েন্ট আছে, 12 কিলোমিটার রেডিয়াসের এই ফোর্ট। তো এক একটা করে পয়েন্টে যাব আর আপনাদের সাথে পুরোটা শেয়ার করব। প্রথমেই যাচ্ছি আমরা কুম্বা প্যালেসের দিকে। পদ্মাবত মুভির শুটিংও কিন্তু এই চিত্তরগড় ফোর্টেই হয়েছে। রানী পদ্মাবতীকে পাওয়ার জন্য আলাউদ্দিন খিলজি এই চিত্তরগড় ফোর্টটাকে পুরোটাই ধ্বংস করে দিয়েছিল। सबसे पहले आपका फोर्ट के अंदर हार्दिक स्वागत, वेलकम। इस किले का निर्माण 5th सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, नाम सुना आपने, चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य के नाम से चित्रकूट, चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा। पूरे किले में 113 टेम्पल, 84 वाटर टैंक, 700 एकड़ की ज़मीन है, और ज़मीन से 580 फीट की ऊंचाई में किला है। इसलिए कहते हैं गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ यहाँ, रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब पदैया। इस किले के मुकाबले को किला ने जितना विशाल फोर्ट है, यहाँ की रानी इतनी सुंदर थी, कहते पानी पीती पान खाती, गले से दिखता जिनके मुकाबले कोई रानी नहीं थी। अभी अपन फर्स्ट पॉइंट अपन विजिट करें किले का मेन पैलेस, रॉयल पैलेस कुंभा पैलेस। ये रॉयल फैमिली के रहने की जगह थी। इस पैलेस की यूनिट डाली थी बप्पा रावल ने 8th सेंचुरी के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम में राज कार्य किया है। जैसे कि पप्पा रावल के नींव डाली, उसके बाद सेकंड राजा ने थोड़ा और बनाया, फिर थर्ड वाले ने और बनाया। इस प्रकार से किले का सबसे बड़ा सबसे पुराना महल ये है कुंभा पैलेस, यही वाला कुंभा पैलेस। अभी अपने जिस गेट से एंट्री किया ना सर, ये घोड़े के रास्ते से अपने एंट्री किया है। इसका मेन एंट्री गेट आपको पूर्व दिशा में दिखाएंगे, सूरज फॉल है ना, यहाँ का पूर्वी गेट है ना, इसी पैलेस का पूर्व गेट जो ईस्ट फेस में बना हुआ है। तो अभी अपने हॉर्स है ना, हॉर्स वाले रास्ते से एंट्री किया है। इनके घोड़े तो खूब सारे होते हैं, इंपॉर्टेंट 7 घोड़े बांधने का पोल देख सकते हो आप। तो 7 घोड़े बांधने की जगह थी इसका।
ओके, इसका मेन गेट अपन पूर्व दिशा में देखेंगे। आइए सर, सूरज झरोखा, सूरज विंडो, जैसे कि जब बारिश होती है, बदल होती है, उस टाइम प्रॉपर सूरज नहीं दिखता है, उस टाइम यहाँ पे गोल्ड का सूर्य रख के सूर्य की पूजा अर्चना की जाती थी। अभी क्या पहले का ही बनाया ये नया रिनोवेट किया गया है, बाद में नया बनाया गया है। तो अभी यहाँ जो सूरज का जो है ना, गोल्ड का सूर्य रख के जो पूजा की जाती थी, अभी अगर आप उदयपुर सिटी पैलेस देखने जाओगे तो यहाँ का गोल्ड का सूर्य उदयपुर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी रानी की पद्मिनी की पुरानी डोलियाँ वगैरह या क्या है जो है ना, पुराने हथियार वगैरह और राजाओं के जो कवच दस्ताने थे, वो सारा उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर में रखा हुआ अभी। सामने जो गेट देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं कुंभा पैलेस का पूर्वी गेट, मेन गेट। मेन आना जाना इस गेट से हुआ करता था। तो किले का मेन गेट पूर्व दिशा में मैंने था ना, अभी आप बैक साइड से हो, तो किले का मेन गेट भी पूर्व दिशा में ही है। और इस कुंभा पैलेस का मेन पैलेस का है ना, प्रवेश द्वार भी मेन पूर्व दिशा में हुआ करता था। पूर्व दिशा में गेट रखना शुभ माना जाता है। तो इस किले का मेन गेट भी पूर्व दिशा में देखेंगे, सूरजफॉल गेट, और इस पैलेस का भी मेन गेट पूर्व दिशा में है ना, इसका पूर्वी गेट माना जाता है। इसको मेन गेट, पूर्वी गेट अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो मेन एंट्री राजाओं का इधर में आना होता था। अभी अपना घोड़े के रास्ते से एंट्री किया था। और बोलते हैं मीटिंग हॉल, यहाँ पे मीटिंग हुआ करता था पहले। अभी प्रेजेंट टाइम में सर यहाँ पे इवनिंग टाइम में लाइट एंड साउंड का शो होता है। तो अभी इनका सर्दी का टाइम है तो जल्दी सूर्यास्त होता है, तो अभी लगभग 6:30 बजे का टाइमिंग है लाइट एंड साउंड का, है ना। उससे पहले जो गर्मी का टाइम आएगा तो 7:30 बजे तक लाइट एंड साउंड स्टार्ट होता है। इस पर है ना सनसेट होने पे स्टार्ट, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। सामने जो पार्ट है इसी पैलेस का पार्ट है कुंभा पैलेस। इसको बोलते हैं मर्दाना पैलेस, जनाना पैलेस। सैनिक इधर रहेंगे, दादशाह इधर रहेंगे, इस प्रकार से डिवाइड हुआ करता था पहले। सैनिक रहेंगे, दादशाह इधर रहेंगे, अलग अलग डिवाइड हुआ करता था। तो ये पूरा इसी पैलेस का पार्ट है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर में पूरे किले के मंदिरों को तोड़ दिया था। तो इस पैलेस को भी अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे को तोड़ा था सर, जो पूरा डिस्ट्रॉयड है ना, पूरे सारी छतें वगैरह सारा तोड़ दिया गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने रानी जब जौहर कर लिया ना 16,000 रानियों के साथ में, जब रानी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगी तो पूरा किला तोड़ने में अपना गुस्सा निकालता सर। तो ये पूरा किला बांगा फोर्ट है सर, बंगाली में बोलते हैं बांगा फोर्ट। हाँ सर देखिए, ये सुरंग का रास्ता टनल, यहाँ से एक सुरंग स्टार्ट होता है, आगे एक रानियों का स्विमिंग पूल है सर। 84 वाटर टैंक में से एक पवित्र कुंड है, गौमुखी कुंड है, जो गाय के मुख से पानी गिरता है उसको पवित्र कुंड माना जाता है। तो यहाँ पे रानियों का अपने पैलेस से इस सुरंग के रास्ते से जाना, गौमुख में नहाना, शिव की पूजा करके वापस अपने पैलेस में आना होता था। तो अभी टनल को दोनों तरफ से क्लोज करेगा, इधर से उधर से दोनों तरफ से बंद है सर टनल वाला रास्ता। और कहते हैं कि टनल इतना चौड़ा कि उसके अंदर भी डोली में बैठ के दादशाह को लाया ले जाया करती, इतना चौड़ा टनल हुआ करता था पहले। तो ये वाला जो इसका मुंह जहाँ पर है वहाँ पर तो हम जाएंगे ना? हाँ, तो उधर भी बंद है, इधर में दोनों तरफ से बंद कर रखा है। हाँ देख पाएंगे, पर बंद कर रखा है। हाँ। लगभग 1 किलोमीटर लंबा टनल होगा। अच्छा। ये सारी देख रहे छतें तोड़ दी गई सर, सभी का है ना छतें थी, ये सारा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़ा गया सर। कोई गुस्से में? अलाउद्दीन खिलजी जब रानी नहीं मिली, पूरा किला तोड़ने में अपना गुस्सा निकाला। तो सारा खंडर है, इसको बोलते बांगा फोर्ट। लिविंग रूम, बाथरूम हुआ करते थे, नहाने की जगह, ओके, ऑल टाइम के बाथरूम। नहीं मैम, वो तो जैसे कि वो 3rd फ्लोर था ना, 3 मंजिल था इस प्रकार से। ये झरोखा रखते थे, झरोखा विंडो। ये सामने जो देख रहे पूरा इसी पैलेस का पार्ट है। इसका ऑर्डर है मर्दाना पैलेस, जनाना पैलेस, इसको अपन पर्शियन में बोलते हैं ना, मैन वुमैन, इस प्रकार से। तो सैनिक इधर रहेंगे, दादशाह इधर रहेंगे, इस प्रकार से डिवाइड हुआ करता था। सामने जो 3 मंजिल महल दिख रहा है मैम, उसको मीरा महल के नाम से भी जाना था। मीरा यहाँ की रानी थी, बाद में भक्त बनी थी ना। तो राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र राजा भोज है ना, उनकी पत्नी थी मीराबाई। तो ये इसको सामने वाले पैलेस को मीरा महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा इसी पैलेस का पार्ट है कुंभा पैलेस, जो कि राणा कुंभा ने इसका रिनोवेट कराया था। इधर राइट साइड में देखेंगे इनका राय है ना, राज दरबार लगता था यहाँ पे। ये पूरा स्टेज यहाँ पर राजा बैठते थे, यहाँ पे ना पूरा राज दरबार लगता था। राज दरबार लगने वाली जगह होता था पूरा राज दरबार। तो ये पूरा कुंभा पैलेस का पार्ट है। अगर आपने गाइड मूवी देखा हो, उसका शूटिंग इसी पैलेस के अंदर में, और सामने टावर के उधर रानी के महल पे हुआ था। और एक प्रेम रतन धन भाई अगर आपने देखा हो, वो नहीं, जब वो गाना है जब तुम चाहते हो पास आते हो दूर जाने वाला गाना, वो इसी पैलेस में फिल्माया गया था उसका जी। और एक ये जवानी ये दीवानी अगर मूवी आपने देखा हो, उसका शूटिंग भी यहीं से लिया गया, सनसेट के सामने से। बनी जहाँ है वहीं का मजा लेते, लाइफ में कुछ न कुछ छूट ही जाता ना सर, वो शॉट यहीं से लिया गया था सामने व्यू का। ओके, तो ये कुंभा पैलेस रॉयल पैलेस हुआ करता था। तो यहाँ पे पूरा राज दरबार लगने वाली जगह थी। ओके, ফোর্টের ওপর থেকে নিচের ভিউটা একবার দেখুন, মানে অবিশ্বাস্য। এই যে পুরো একদম ব্লু, এখানে সব নিচে নিচে বাড়িঘরগুলো, দারুণ সুন্দর।
মানে খুব সুন্দর, এখানে সব ছবি তুলছে, মানে আমার মনে হয় এটা বেস্ট ছবি হবে এখানকার মধ্যে। পুরো ফোর্টের দেখুন একটা ভিউ। বিল্ডিং তৈরি যেই হতো, যেই চুনগুলো সেটা এখানে পেশা হতো। ও ডাল চাল গম সবই এখানে পেশা হতো, সব কিছুই হতো এখানে পেশা হতো। थी जैसे चिकनी दाल गोंद चूना जो दीवार बनाने में काम आता था, है ना। जैसे ऑक्स होता है ना, ऑक्स बैल, उसको घुमाया जाता है चारों तरफ, ग्राइंडर है ना, इस प्रकार से। আর এই সোজা যেই দেয়ালটা, এটাকে বলে বনবীরের দেওয়াল। এটা কিলাটাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিল। এইবারে এসে গেছি মীরা মন্দির। এখানে জুতো খুলে ঢুকতে হবে মন্দিরে। देखिए सर, मैंने बताया किले में 113 टेम्पल है, उनमें से सबसे बड़ा सबसे पुराना मंदिर सामने वाला कुंभ श्याम टेम्पल। इस टेम्पल की नींव डाली थी बप्पा धावल ने 8th सेंचुरी के अंदर में। तो ये पहले विष्णु के वरा अवतार का मूर्ति था इस मंदिर के अंदर में। उसको भी 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी ने जब तोड़ दिया, तो महाराणा कुंभा ने 1468 के टाइम में किले के मंदिर महलों का पुनर्निर्माण कराया। तो उनमें से इस मंदिर का भी महाराणा कुंभा ने रिनोवेट कराया, इसलिए इसका नया नाम बाद में कुंभ श्याम टेम्पल दिया। बाकी इस मंदिर के अंदर पहले जो ओल्ड जो मूर्ति थी 8th सेंचुरी की, वो विष्णु के वरा अवतार की मूर्ति थी। उसको जब तोड़ दिया तो बाद में राणा कुंभा ने नई मूर्ति, अभी प्रेजेंट टाइम में राधा कृष्ण बलराम की मूर्ति का आप दर्शन करने को मिलेंगे। विष्णु का वाहन क्या होता है आपको पता है सर? गरुड़ भगवान। विष्णु के वाहन की गरुड़ भगवान की मूर्ति को नहीं तोड़ा, इसलिए अभी भी वो बाहर लगा हो गरुड़ भगवान की मूर्ति, अभी भी ब्लैक स्टेचू। हाँ, वो ब्लैक कलर का जो स्टेचू है वो मंदिर के साथ का स्टेचू है। अंदर की मूर्ति 1433 के अंदर में नई लगाई, राधा कृष्ण बलराम। ओके, आपने गुजरात सोमनाथ मंदिर देखा सर? इसके आगे वाला बड़ा पार्ट गुजरात सोमनाथ वाला, इसका लेफ्ट वाला उड़ीसा जगन्नाथपुरी का बैक पार्ट। एकदम पूरी जैसे लग रहा है। हाँ, उड़ीसा जगन्नाथपुरी का मंदिर उसी पैटर्न पर बनाया गया इसको। तो पहले विष्णु का मंदिर था, अभी प्रेजेंट टाइम में कुंभ श्याम टेम्पल। तो किले का सबसे बड़ा सबसे पुराना मंदिर माना जाता है कुंभ श्याम टेम्पल को। ओके, सामने वाला टेम्पल छोटा मंदिर है मीरा टेम्पल। मीरा जी का यहाँ ससुराल है। राणा सांगा का नाम सुना आपने? राणा सांगा संग्राम सिंह जी, कहते कि उनका एक आँख और एक हाथ नहीं था, और खानवा का लड़ाई लड़ा था 1526 के अंदर में बाबर के साथ में। वही राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज के साथ मीरा का शादी हुआ था। शादी के कुछ टाइम के बाद मीरा के पति राजा भोज का नेचुरल डेथ हो जाता है। तो इसी छोटे मंदिर के अंदर में मीरा जी को मारने के लिए पॉइजन ला के दिया, जहर ला के दिया। तो मीरा ने पहले भगवान के भोग लगाया, फिर हंसते हंसते जहर को पी लिया था, जो अमृत में मिला। सेकंड बार फूलों की टोकरी में सांप लगा दिया, जैसे टोकरी का ढक्कन खोला, सांप की जो फूलों का हार बन गया, लेके भगवान के चढ़ा दिया। अभी अपन देखते हैं ना टीवी सीरियल पर द्रौपदी चरण की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मीरा बाई की यहाँ पर भगवान कृष्ण ने रक्षा की। मीरा को बहुत परेशान किया गया। मीरा बाई यहाँ से परेशान होकर अपने मायके चले जाते हैं। हमारे राजस्थान के अंदर एक छोटा सा है ना, नागौर जिले का नाम अगर आपने सुना हो, वहाँ पर एक छोटा सा गाँव कुड़की, वहाँ चले, उनका मन नहीं लगा। गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करते, लास्ट गुजरात द्वार के अंदर जाती है, मूर्ति में समा जाती है। तो भी अपन मीरा मंदिर में जो दर्शन करते हैं ना, अभी प्रेजेंट टाइम में 2002 की मार्बल की मूर्ति के अपने को दर्शन करने को मिलेगा। ओरिजिनल मूर्ति मेरे अपने साथ लगी थी, उसी मूर्ति में समा गई थी। ओके, तो ये मीरा मंदिर आप दर्शन करेंगे। मीरा जी के गुरु रविदास, उनके फुटप्रिंट है। और ऊपर देखिए यहाँ का आर्ट है, 1 हेड 5 बॉडी 2 हैंड, एक मुख है, 5 शरीर है और 2 हाथ है। तो यहाँ का आर्ट है, कला है। एक माउंट आबू दिलौर जैन मंदिर सेकंड कला आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक ही मुख 5 बॉडी में सेट होता है, और दोनों 2 हाथ देख रहे ना, तो एक ही मुख 5 बॉडी में, और दोनों हाथ 2 हाथ है जो 5 बॉडी में सेट हो जाता है। एक आर्ट है, कला है। मीरार गुरु जिनी छिलेन रविदास रेदास, ओनार पाয়ের ছাপ এখানে। আর এর সাথেই এখানে মীরার মন্দিরটা। কৃষ্ণের এই মূর্তিটি 2002 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জগন্নাথ মন্দিরের আদলে এই মন্দিরটি। তো এবারে চলুন এখানটাতে আমরা একটু দেখে আসি কি আছে।
এবারে আর একটা পয়েন্টে আসলাম, এখানে 4টে পয়েন্ট আছে বললো পরপর। তো গেটে কিন্তু টিকিট চেক করছে, ওই জন্য হাতের পাশে টিকিটটা রাখবেন। আর এই যে দেখুন রাস্তায় হনুমান, এখানে কিন্তু প্রচুর হনুমানের উৎপাত। এই যে দেখুন, বাপরে, একবার মন্দিরগুলো দেখুন, মানে মানে চোখে না দেখলে না আমার মনে হয় না সেই ফিলটা আসবে, কারণ মানে প্রত্যেকটা জিনিস এত সুন্দর। দেখুন ছবি তুলছে। দেখুন এখানে মানে লাইন দিয়ে হনুমান। একবার দেখুন এই গেট দিয়ে ওই মন্দিরটার ভিউটা, উফ অসাধারণ। सामने जो टावर देख रहे हैं सर, इसको बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1448। महाराणा कुंभा ने मध्य प्रदेश, मालवा और गुजरात 2 स्टेट को एक साथ हराया, उसकी खुशी में विजय स्तंभ बनाया। 122 फीट हाइट है, 157 स्टेप्स है, 9th फ्लोर है। आप विंडोज से गिन सकते हैं, 9th फ्लोर है, काउंटिंग कर सकते हो 9th फ्लोर। इसको बनाने में 550 साल पहले 90 लाख रुपए खर्च होते, जो सिल्वर कॉइन्स होते थे, और 10 ईयर 10 साल इसको बनाने में लगे थे सर। उस ज़माने में 550 साल पहले 90 लाख रुपए खर्च होते। अभी यार काउंटिंग कर सकते हैं, 9th फ्लोर है। अभी ये कोविड से बंद कर रखा है इसके ऊपर चढ़ना उतरना, बाकी पहले है ना 8th फ्लोर तक चढ़ना उतरना होता था। 9th में सीढ़ियाँ डैमेज होने से 8 मंजिल तक चढ़ है ना उतर सकते हैं अपन। तो 157 स्टेप चढ़ना उतरना होता है, 9th फ्लोर। ओके, ब्रॉड नेरो ब्रो डमरू होता है ना, डमरू की शेप में इसको बनाया गया है। हिंदुओं में 9 ग्रह देवता, 9 ग्रह है, इसलिए 9th फ्लोर बनाए, 9 मंजिला। जौहर की जगह है, वर्ल्ड का ये सामने वाला गार्डन पूरा जौहर कुंड है, वर्ल्ड का सब पहले मतलब कुंड हुआ था, खड्डा हुआ था, अभी इसको गार्डन बना दिया गया। जी सर, तो सुनेंगे सामने जो गार्डन पहले कुंड हुआ करता जौहर कुंड, तो अब इसको गार्डन बना दिया गवर्नमेंट ने। तो कहते कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर किया था रानी पद्मावती ने 1303 के अंदर में 16,000 रानियों के साथ में। सेकंड जौहर किया था रानी कर्णावती ने, जो हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को मौसम खराब होने से 2 दिन का लेट हुआ, तो सेकंड जौहर कर्णावती ने किया था, है ना, 1535 के अंदर में 13,000 लेडीज़ के साथ में। थर्ड जोर किया था 1568 के अंदर में, उदय सिंह जी के सैनिक थे, जयमल फत्ता का नाम सुना आपने? जयमल फत्ता की पत्नी थी फूल कमर, उसने तीसरा जोर किया 6,000 लेडीज़ के साथ में। तो ये गार्डन पहले खड्डा हुआ करता था। इसी गार्डन के अंदर एक अभी अपन एक छोटा हवन कुंड देखेंगे, तो अभी मार्च महीना था, मार्च महीने में होली आती है ना अपना, ऑल टाइम में तिथि होता, तारीख नहीं होता था। अभी उसी तिथि के दिन, होली के अगले 11वें दिन, एकादशी के दिन, अभी भी इस गार्डन के अंदर एक छोटा हवन कुंड है, वहाँ पर अभी भी मेला लगता है ना, जौहर मेला। तो उस दिन यहाँ पे हवन पूजन किया था इनकी आत्मा को शांति देने के लिए। तो अभी इनके वंशज उदयपुर महाराणा महेंद्र सिंह जी, अरविंद सिंह जी, तो अभी महेंद्र सिंह जी का थोड़े दिन पहले देहांत हो गया था, तो उनके बेटे विश्वराज सिंह जी का भी 25 नवंबर को इस किले के अंदर में राज तिलक हुआ था। वो जगह अपन आगे देखने को मिलेगा आपको। तो अभी इनके वंशज आते हैं यहाँ पे हवन पूजन करते हैं इनकी आत्मा को शांति देने। तो ये पूरा गार्डन पहले खड्डा हुआ करता था। तो रानी पद्मावती का भी क्या जौहर है? हाँ, रानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया था, कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर। जी, ये सामने जो छोटा प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये चबूतरा, इसको बोलते सती चबूतरा। पहले सती प्रथा अनिवार्य था, जो बाद में राजा राम मोहन राय ने बंद कराया था। तो सती चबूतरा, रॉयल फैमिली को डेड बॉडी का जलाने का शमशान भी यही था। ओके, तो ये पूरा जौहर कुंड और यहाँ का सती चबूतरा और रॉयल फैमिली डेड बॉडी का शमशान। उसी जगह आपने सुना हो तो जल जौहर भी हुए थे राजस्थान के अंदर में। ये अग्नि जौहर हुआ करता था, तो अग्नि जौहर को सबसे उत्तम माना जाता है। अग्नि जौहर का क्या होता है कि मैम जगह अग्नि में जो रानी अपने आप को है ना कूद जाती, तो उसकी राख ही बचती थी। तो जो भी दुश्मन आते उनको हाथ में, उनको राख हाथ में लगती थी। बाकी बहुत सी जगह राजस्थान में जल जौहर भी हुए। तो जल जौहर में क्या कि जल जौहर होने के बाद उनकी बॉडी के साथ भी जो यहाँ के लोग हैं ना गंदा खिलवाड़ किया करते थे, इसलिए इसको अग्नि जौहर को उत्तम माना जाता है। इसलिए तो ये पूरा छोटा हवन कुंड है, यहाँ भी हवन पूजन किया इनकी आत्मा को शांति देने। ये छोटा हवन कुंड है ना, मार्च महीने में होली है, होली के अगले 11 दिन यहाँ पे एकादशी के दिन हवन पूजन किया। ओके, तो ये पूरा जौहर की जगह। तेल चंदन की लकड़ियाँ डाल के आग अपना आग जलाना, फिर अपने आप को आग के हवाले कर देना, उसे जो है ना अग्नि जौहर कहते हैं। तो जौहर कुंड पूरा है। ओके, আচ্ছা, এই জায়গাটাতেই কিন্তু রানী পদ্মাবতীর জওহরটা হয়েছিল। তো সেটার প্রুফটা জানেন কি, কিভাবে জানা গেল এত বছর পরে? মানে মহিলারা যখন এখানে ঝাঁপিয়েছিল তখন তাদের তো আর কিছু পাওয়া যায়নি ছাই ছাড়া।
তো পাওয়া গেছিল শুধু গয়না, তাদের পরা যেই গয়নাগুলো ছিল সেগুলো পাওয়া গেছিল, সে কারণেই সেটাই প্রুফ করছে যে এখানে জহর হতো এই জায়গাটাতে। জহর মানে হচ্ছে কোনো দেশের রাজা যখন হেরে যায় সেই রাজ্যের মহারানী আর বাকি সব রাজ্যের মহিলারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তো এইটা একটা গর্ত মতন ছিল জায়গাটা, এখানেই তারা ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছিল। এটা তাদের উদ্দেশ্যে বললাম যারা জহরটা বুঝতে পারছিলেন না। এটা জহরের গেট, দুটো গেট আছে, একটা এই দিকে আর যেটা দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম ওই দিকটাতে। इसके अंदर में शिव जी का त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश कहते कि जन्म देने वाला, पालन करने वाला, हरण करने वाला, तीनों की मूर्ति लगाई। इस मंदिर का निर्माण का राजा भोज का गंगू तेली का नाम सुना आपने, जो मध्य प्रदेश धार के राजा थे, परमार वंश के था सर। उन्होंने इस मंदिर को बनाया था 11वीं सेंचुरी के अंदर में। लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है, 1000 साल पहले था। जैसे गॉड होता है ना, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयड, इसके अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति है। जब इसको 11वीं सेंचुरी में अंदर बनाया तो ब्रह्मा जी है ना कमल पर लोटस, तो इसकी डिजाइन लोटस की देखिए, आप देख सकते हो लोटस की डिजाइन दी गई। सेकंड में सिंह द्वार जो घर पे लगा था ना, ये सिंह द्वार की डिजाइन दी गई। इसमें हाथी घोड़े डोली पालकी की डिजाइन दी गई है, इसमें हॉर्स भी आ रहा है, देख रहा। ये जैन बुद्ध भगवान की मूर्ति है, जैन राजाओं के केशियर होते लेन देन करने वाले, उन लोगों की मूर्ति भी लगाई गई है। ये हमारा राजस्थान में ऑर्नामेंट्स बना था, बाजूबंद कमरबंद, उसकी डिजाइन दी गई है जी। इसमें गणपति जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ की पत्नी आल फैमिली का मूर्ति कम दर्शन को मिलता है अपने को। ओके, तो 11वीं सेंचुरी का मंदिर, 1000 साल पुराना मंदिर है। तो इसके अंदर में क्या होता है मैम, पहले एक 9 फीट बड़ा चट्टान था, 1 स्टोन, उसके ऊपर पहले मूर्ति बनाया गया, फिर चारों तरफ मंदिर बनाया गया। तो इसका मूर्ति का और मैं ना गेट का अनुमान आप लगा सकते, गेट छोटे छोटे, मूर्ति 9 फीट बड़ा हाइट का है। तो पहले मूर्ति बनाया जाता, फिर चारों तरफ मंदिर बनाया जाता है। तो इसको भी जब है ना 1303 के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी तोड़ दिया, महाराणा मोकल जी ने 1485 के अंदर इसका रिनोवेट किया, इसलिए मोकल जी का मंदिर भी कह सकते हैं अपन। महाराणा कुंभा के फादर थे महाराणा मोकल ने इसका रिनोवेट कराया था 1485 के अंदर में, तो इसको मोकल जी का मंदिर भी अपन कह सकते हैं। ओके, अब आप लोग दर्शन करेंगे, अच्छा मूर्ति, 9 फीट बड़ा मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, মন্দিরের ভেতরটা চলুন তাহলে। মন্দিরের ভেতরেই 4টে গেট আছে। ভীষণ সুন্দর মূর্তিটা, একটু দেখুন। মানে আগে এই মূর্তি তৈরি হয়েছে, তারপরে মন্দিরটা, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। খুব সুন্দর। इसको बोलते हैं गौमुखी कुंड। ये गाय का मुख बना, उससे पानी गिरता है, इससे इसका नाम गौमुख दिया। ऐसे किले में 84 तालाब में से सबसे पवित्र कुंड है गौमुखी कुंड। ये रानियों का नहाने की जगह, रानियों का स्विमिंग पूल है। अभी अपने कुंभा पहले जो सुरंग बताया ना, वो सुरंग वहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके सुरंग खत्म होता है। तो यहाँ पर रानी का नहाना, शिव की पूजा करके वापस अपने पैलेस में जाना होता था, जो सुरंग को दोनों तरफ से क्लोज कर रखा है। इस कुंड के लिए कहा गया है, झरना गिरे गोमुख भरे निर्भय नाथ की ठोड़, करोड़ करोड़ तपस्या करे तब पावे घर चित्तौड़। तो इसका है ना, गाय के मुख से पानी गिरता है, उसे कुंड बढ़ता है, कुंड से फिर इसका झरना है ना और फ्लो होकर वो सामने जाली लग रही, वहाँ से इसका पानी नीचे और फ्लो होता है। तो गाय का मुंह कहाँ है? वो सामने जो देख रहे हैं, ये मंदिर जो है ना, इस मंदिर के आगे गाय का मुख बना हुआ, उससे पानी गिरता है। और एक गाय का मुख जो पिलर है वहाँ पे है, जो अभी लेवल पानी का ज़्यादा होने से एक बंद है, ऊपर वाला भी दिख जाता है ऐसा। तो ये गौमुखी कुंड बोलते हैं। तो रानियों का नहाने की जगह सर, में 5 लोग किले में रह रहे हैं सर। तो ये पूरा विलेज पार्क अभी भी किले में, किले का अंदर है। हम लोग खुद किले में रहते हैं और ये सारे किले वाले लोग नीचे सिटी के अंदर रहने लगे, बाकी बहुत से लोग अभी भी किले में रह रहे हैं सर। तो ये सभी लोग पहले किले के अंदर में रहते थे। ये पहले बैटलफील्ड युद्ध का मैदान हुआ करता था सर। जब महाराणा कुंभा ने इधर 7 गेट बनाए ना, तो दोनों तरफ से हमले होने लगे, तो इधर भी हमला हुआ था और पूर्व दिशा में भी हमला होता है। तो ये पूरा युद्ध का मैदान, बैटलफील्ड है, युद्ध का मैदान। ओके, तो इसको बोलते हैं सिटी व्यू पॉइंट बोलते हैं इसको, व्यू दिखता है पूरा। এখন দাঁড়িয়ে আছি কালিকা মাতা মন্দিরে। এখন বর্তমানে এখানে কালী মন্দির রয়েছে, কিন্তু আগে এটা সূর্য মন্দির ছিল। আর সূর্য মন্দির থাকাকালীন এইখানে পাশেই একটা কুণ্ড আছে, ওটা সূর্য কুণ্ড বলে বিখ্যাত। তো দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে ওই দূরে ওটা হচ্ছে সূর্যকুণ্ড।
এই যে কালিকা মন্দির, এটাকে বলছে সূর্যতলা আর সূর্যকুণ্ডটা এই যে এখানে ওপর থেকে একটু ভিউ দিলাম। ভেতরে ছবি তোলা গেল না, ওখানে অ্যালাউড না, সে কারণে মূর্তিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। রানী পদ্মিনীর প্যালেসে আসলাম, যেটারই মুভি হয়েছিল পদ্মাবতী। रानी पद्मिनी की जो सर्वेंट्स होती है उनका सर्वेंट का मीटिंग हुआ करता था इधर में। ओके आइए, और ये राइट लेफ्ट में देख रहे हैं ये सारा गार्डन है, ये रानी पद्मिनी का गार्डन हुआ करता था। रानी के गार्डन में घूमने की जगह थी इधर में ना, पूरा गार्डन। ये वाला समर में? हाँ, ये समर टाइम में रहने की जगह है 4 महीने। तो समर पहले अभी अपन देखने जा रहे हैं। अच्छा। उससे पहले रानी पद्मिनी का गार्डन है। समर टाइम में रहना, समर टाइम में हमें घूमना फिरना हुआ करता था, रानी का गार्डन हुआ करता था ये। सामने जो स्टेप्स देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस का एंट्री होता था इधर में। सीढ़ी से आगे देख रहे हैं, पानी दिख रहा है अंदर में, तो वहाँ से नाव लगता लकड़ी की नाव से रानी का समर पैलेस में जाना होता था। तो रानी बहुत सुंदर था, इसलिए 4 महीने पानी के बीच में समर टाइम में समर पैलेस, बाकी विंटर और रेन के अंदर कुंभा पैलेस रहना होता था। तो ये समर पैलेस का एंट्री हुआ करता था इधर से। এই ঘরের জানলার থেকে রানী পদ্মাবতীর মহলটা দেখা যাচ্ছে, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। পুরো জলের মাঝখানে একটু আগে একটা সিঁড়ি দেখিয়েছিলাম, সেখান থেকে রানী পদ্মিনী নৌকায় করে ওখান থেকে আসা যাওয়া করতেন, আর এই মহলটাতেই উনি থাকতেন। রানী পদ্মিনী এতটাই সুন্দর ছিলেন, সেফটি সিকিউরিটির জন্য এই জলের মাঝখানে এই মহলে রাখা হতো। পদ্মাবতী মুভিতে আমরা দেখেছি যে রাজা রতন সেনের অর্ধাঙ্গিনী ছিলেন পদ্মাবতী, আর রাজা বিয়ে করে ওনাকে চিত্তরে নিয়ে এসেছিলেন। আর রানী পদ্মাবতীর আমি জওহরের জায়গাটাও দেখালাম, যেখানে স্বয়ং রানী ও রাজ্যের মহিলারা নিজেদেরকে আগুনে আহুতি দিয়ে দেন। अभी सामने जो कमरे देख रहे, रूम्स देख रहे हैं हम, ये सर्वेंट क्वार्टर है। ये दासियों के रहने की जगह थी। तो रानियों का ये सर्वेंट के रहने की जगह है, और रानी को ब्यूटी पार्लर भी था। रानी के 16 श्रृंगार होया करते थे पहले और अभी भी। तो रानी के 16 श्रृंगार की जगह है। तो 4 रूम सेम बनाए गए, देखें सेम रूम। तो 4 उस कमरे में, 4 इस कमरे में, 4 इसमें और 4 वो लास्ट वाले कमरे में। तो ये रानी का है ना ब्यूटी पार्लर भी हुआ करता है, रानी का 16 श्रृंगार की जगह थी। ओके, तो 4 रूम सेम इसलिए बनाए गए। और ये सर्वेंट्स के टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे। इसको पहले देखने को मिलता था टूरिस्ट को, पर क्या कि इसको लोग मिस यूज करने लगे, इसको यूज करने लगे, तो क्या कि ये बदबू मारने लगे, तो इसको भी गवर्नमेंट को बंद करना पड़ा। बाकी पहले इधर में देखने को मिलता था इनके टॉयलेट बाथरूम सर्वेंट्स के। ओके सर, जी सर। इसके ऊपर देख रहे रूप नहीं है, छतें नहीं है। पहले चूना होता है ना, चूने का सेट तैयार, जैसा अभी टीन सेट होता ना, पहले चूने का सेट तैयार करके डाला जाता है। तो छतें कच्ची होती इसलिए है ना टूट गई थी। ओके, कच्चा होने से। तो ये सारे सर्वेंट्स के क्वार्टर है। চিত্তরগড় ফোর্টটা কিন্তু পুরোটাই গাড়ি করে ঘুরতে হয়, তো সেই গাড়ির দিকেই আমরা রওনা দিলাম নেক্সট স্পটের জন্য। ये तो पूरा लेफ्ट साइड में जंगल है ना पूरा। ये तो जंगल, राइट में भी जंगल ही है पूरा, देख रहे हो? फॉरेस्ट पार्ट है पूरा।
অ্যাডভেঞ্চারাস রাস্তা, তো সেটাও একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। हाँ ये सामने देख रहे हैं शिव मंदिर है। और ये डियर पार्क बंद है, ये लिखा हुआ राइट में देख रहे हैं सर। वो बंद है, डियर पार्क बंद है। ये राइट में पूरा बैटलफील्ड है जिसका मैदान, ये किले की वॉल चली दीवार देख रहे हैं। তো নিচে পাঁচিলটা আচ্ছা দেখো। আচ্ছা पूरा নিচে पूरा पूरा নিচে बैटलफील्ड নিচে है। একদম এর সাথে নিচে ওয়ালটাই। हाँ ये वॉल वॉल दीवार है। और आगे तक का पूरा एरिया जो दिख रहा है ये बैटलफील्ड है। আচ্ছা और सामने की पहाड़ी दिख रही है, फर्स्ट वाली पहाड़ी, उसको ध्यान से देखो। जैसे कोई आदमी लेटा हुआ लग रहा है, इसका मुख है, इसका पेट और पाँव। স্টুপিং বুদ্ধ। इसको बोलते हैं कुंभकर्ण की पहाड़ी, कुंभकर्ण जैसा बड़ा आदमी लेटा हुआ है। बोलो बोलो। কোনো একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাটলফিল্ডটা একটু দেখবো। এই পুরোটাই ছিল ব্যাটলফিল্ড। এটা হচ্ছে ভীমরাত কুণ্ড। অনেকের কথা অনুযায়ী ভীম এই কুণ্ডটাকে তৈরি করেছিলেন, তাই নাম দেওয়া হয়েছে ভীমরাত কুণ্ড। এই মন্দিরটার নাম বললেন অদ্ভুত মন্দির। এখানে শিব ঠাকুরের পুজো করা হয়, তবে এখন পুরোটাই দেখতে পাচ্ছেন ভগ্ন অবস্থায়। তো একটু ভেতরটা গিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। কারুকার্যগুলো একবার একটু দেখুন। সেই সময় হাতে গড়া এই কারুকার্যগুলো মানে সত্যিই দারুণ। আর এই দেখুন মূর্তিটি, এটাও কিন্তু পাথর কেটেই তৈরি করা, তারপরে মন্দিরটি তৈরি করা হয়। এখানের মন্দিরগুলোর একটা বিশেষ ব্যাপার আছে, আগে ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হয়, তারপরে মন্দির তৈরি হয়। আর মূর্তিগুলো কিন্তু সবই দরজার থেকে অনেকটাই বড়। এই মূর্তিটা যেরকম 5 ফিট উঁচু। এবারে আবার নেক্সট স্পট। बोले ये जो गेट है इसको बोलते हैं सूरज फॉल गेट। यहाँ से सरल होता है पूर्व दिशा, इसलिए सूरज फॉल गेट नाम दिया इसका। यहाँ के जो भी राजा हमारे राजपूत सूर्यवंशी होते, सूर्य की पूजा अर्चना करने के लिए गेट पे आते, उसके बाद अपने महलों के अंदर जाके खाना पीना ग्रहण करते थे। इस गेट का नाम सूरज फॉल गेट। इधर भी 7 गेट है मैम, आगे आएंगे अपन देखेंगे। ये फर्स्ट गेट है, वो आगे सेकंड गेट देख रहे हैं आप, ये सेकंड गेट है। इसके आगे वाला थर्ड गेट है जो भी हाफ है, तो 2.5 गेट बचे हुए, बाकी सारे गेट आगे हम लोग में तोड़े गए इधर में। तो पहले इधर में 7 गेट हुआ करते थे। ये फर्स्ट गेट, वो सेकंड गेट, वो थर्ड वाला हाफ आधा देख रहे हैं। तो अभी 2.5 गेट बचे, बाकी सारे गेट तोड़ दिए। तो ये किले का मेन गेट सूरज फॉल गेट, यहाँ से समझ दो सूर्य उदय, इसका नाम सूरज फॉल गेट दिया। ओके, सामने का मैंने पहाड़ी बताया आपको, आदमी का शेप जो है उसको बोलते हैं हंटिंग एरिया। हंट के लिए जाया करते राजा महाराजा। इसका पे है ना, मुँह के पेट पाँव, पाँव की एक लंबा सा पैलेस है। तो यहाँ के राजा हाथी घोड़े बैठ के उस पैलेस के अंदर एक शिकार की हंटिंग एरिया। और ये सामने जो मकान देख रहे हैं पूरा बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान। प्रॉपर आदमी किसी ने 6 मंथ तक यहाँ वेट किया था कब किला खुले, कब किले पे चढ़ाई करें। तो ये पूरा बैटलफील्ड है ना सर, युद्ध का मैदान। कोई दुश्मन चढ़ नहीं पाता है, जब दीवार में से कोई दुश्मन चढ़ नहीं पाता ना, ऊपर के जो सैनिक होते हैं दुश्मनों के ऊपर हॉट वाटर हॉट ऑयल का यूज किया करते थे। पहले हथियार कम थे ना, तो गर्म की तेल डाल के दुश्मनों को घायल किया जाता, इसलिए पूरे दीवार में हॉल बनाए गए। এই ঘোড়াতে উঠে ছবি তোলা যায়, এক একটা শটের জন্য 20 টাকা। জৈন মন্দির, এটাও ডামরু শেপে, কিন্তু 7th ফ্লোর। আগে যেটা দেখেছিলাম তার থেকে 2টো ফ্লোর কম।
मरमुन्नी सिद्धू ये क्या है? মার্কেট ये ओल्ड मार्केट मोती बाजार মতি বাজার এখানে মতি ছোট ছোট মতি দোকান বিক্রি है, হতো, मोती ছোট ছোট बिकते हैं। দোকান ছিল। হুম ये लेफ्ट में नगीना बाजार नगीना নগিনা হয় না যেটা মানে স্টোনস। स्टॉल्स। ये किला की मछली है ना सर, मछली के शेप में जोहर मेले के दिन यहाँ मेला लगता है। ये रोकेंगे ও यहाँ पर मेला। यहाँ मेला या जोहर मेला लगता है और वहाँ जोहर पर मेला। गुजर किया जाता है ना। अच्छा अच्छा। ये लेफ्ट में देख सर उतरेंगे, ये बामा। तो ये किला मछली है ना, तो ये देखिए किस प्रकार से ये सब मछली है किला। ये तो अभी अपन मछली के मुख वाले पार्ट पा रहे हैं। इधर मुख है, अच्छा इधर के 7 गेट, इधर के अपने 7 गेट में बताया ना, वो वेल फिश के फिंग्स गलपड़े हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। तो किला मछली है पूरा। आज अकेले है। আজকে কেমন লাগলো আপনাদের এই ফোর্ট ঘোরানোটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আর এখন চলে যাচ্ছি হোটেল। আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে অমৃত মন্থন। ছোট্ট করে একটা ভিউ দিয়ে রাখবো হোটেলের, আর হোটেলের পুরো ডিটেলস দিয়ে আর একটা ব্লগ থাকবে, সেটা দরকার হলে অবশ্যই দেখে নেবেন। চিত্তরগড়ের রাস্তা, আমরা এখন ফোর্ট থেকে হোটেলের দিকে যাচ্ছি। পৌঁছে গেছি আমাদের হোটেল অমৃত মন্থন। একদম মেন রোডের উপরেই দেখলাম হোটেলটা, হোটেল অমৃত মন্থন। এই লাগেজ নামানো হচ্ছে। পরের ব্লগে হোটেলের পুরো ডিটেলস থাকবে। আজকে এখানেই শেষ করছি ব্লগটা। টাটা।